Good morning students, welcome to my YouTube channel Mathematics by Vimal Srivastava. In the last video we start the chapter number system of class 9. Today we continue the same chapter and the topic is irrational number. So let's start the topic irrational number. We start the topic that is irrational number. Now in the last video when I start the chapter number system, I explained the types of rational number. There are two types of rational number, terminating rational number and non-terminating rational number. And non-terminating rational numbers are further divided in two subparts. फर्स्ट था आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और सेकंड था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारे नंबर्स होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, वही हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स. मैं यहां पर लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर. So simply we can say if we find the decimal expansion of a number and the decimal expansion is non-terminating or non-repeating, so we can say the number is irrational number. Now what is the examples of irrational number? So the best example of irrational numbers are the square root of a number and the number that is not a perfect square. For example root 2, root 3, root 5, root 6, root 7. देखिए we cannot take root 4 because 4 that is the perfect square number and we can write the square root that is 4 to the power 1 by 2 and 4 can be written as 2 to the power 2. So when we solve it is 2. So what are the irrational numbers? The irrational numbers are the square root of a number and the number it should be not a perfect square. So for example if I take 2, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा रूट 2. 3 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा रूट 3. सिमिलरली 5, तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा रूट 5. सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड द नंबर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट लाइक रेशनल नंबर्स वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट irrational numbers on a number line. For example I have to represent root 2 on number line. I repeat, I have to represent root 2 on number line. Now look at here. So first we draw a line like this. Clear? Now it is a point O, it is a point A. Clear? First we draw a line that is a mark 2 point. It is point O, it is point A and the distance between O and A is that is 1 centimeter. Clear? Now what we have to do? Now we have to draw a right angle from the point A like this. यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया है but you have to draw with the help of compass. Clear? Now take A as a center and cut an arc of distance 1 centimeter. Clear? So let this point H be. अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट O और B को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से. तो क्लियर है, हम कह सकते हैं O A B it is a right angle triangle where OA that is the base, AB that is the perpendicular and OB that is the hypotenuse. Now the distance is OA 1 centimeter, the distance is AB is also 1 centimeter. So by Pythagoras theorem we can find OB square equal to OA square plus OB square, or we can write OB square equal to 1 plus 1 equal to 2, or we can write OB equal to under root 2. So now what we have to do? We have to take O as a center and the radius equal to OB. I repeat, O को सेंटर लेके रेडियस लेना है हमको OB और यहाँ से हमको एक आर्क कट करना है. अब ये आर्क इस लाइन को जिस पॉइंट तक कट करेगा लेट दिस पॉइंट इज A1. क्लियर? लेट दिस पॉइंट इज A1. तो ये जो डिस्टेंस है OA1 ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 2 ऑन नंबर लाइन. इट इज क्लियर? ये O हमारा 0 था, ये हमारा 1 सेंटीमीटर था. सिमिलरली इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट रूट 3, आई रिपीट
Similarly, if we have to represent root 3 on number line, then what we have to do? Nothing. Thus, now take the distance OA1. Clear? Now take the distance OA1. तब देखिए OA1 डिस्टेंस कितना हो गया? अब ये हमारा डिस्टेंस OA1 हो गया हमारा √2। यहां से फिर से वही करेंगे, एक 90 डिग्री एंगल लेंगे। डिस्टेंस अभी भी हम वही लेंगे, इसको हमने ले लिया C। डिस्टेंस अभी भी हमारी क्या है? वही 1 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे? O को C से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? अगेन देखिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हमारी डिस्टेंस OA क्या है? √2 और AC क्या है? 1 सेंटीमीटर। ना व्हाट इज OC? अगेन OAC, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी कैन राइट OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ना OC स्क्वायर, OA कितना है हमारा? √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 और AC कितना है? 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो OC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? OC स्क्वायर आपका हो गया 3। तो OC इक्वल टू क्या हो गया? √3। अब हमें क्या करना है? O को सेंटर लेना है, OC रेडियस लेके एक हम आर्क कट कर देंगे और ये जिस पॉइंट पे कट करेगा, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट O एंड A2, ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी? ये डिस्टेंस हमारी होगी √3 ऑन नंबर लाइन। लाइक दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट एनी इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। Like rational number, we can also apply the mathematical operation on irrational numbers, but we have to remember certain rules. Like the first rule is √a whole square equal to √a into √a equal to a। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा √2 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर मीन्स वी हैव टू राइट √2 इन 2 टाइम्स। तो √2 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। सिमिलरली √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5, √6 इंटू √6 6। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है √a इंटू √b इक्वल टू √a इंटू b, और इसको हम लिख सकते हैं √ab। फॉर एग्जाम्पल नंबर हमारे इस तरह से हैं √2 इंटू √3, तो इसे हम क्या लिखेंगे? √2 इंटू 3, और ये किसके इक्वल होगा? दैट इज √6। सो दैट इज अवर सेकेंड रूल। थर्ड, √a अपॉन √b इक्वल टू √a अपॉन b। फॉर एग्जाम्पल सपोज लिखा इस तरह से √3 अपॉन √2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? √3 अपॉन 4। नाउ फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b इक्वल टू क्या होगा? √a होल स्क्वायर माइनस √b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? a माइनस b। देखिए ये कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं है, हमने क्लास 8 में पढ़ा था प्रॉपर्टी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वही है। देखिए जैसे मैंने लिखा √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2, तो ये देखिए ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। अगेन ये a है और ये हमारा क्या है? b। तो a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की जगह क्या है हमारा? √3, तो हम क्या लिखेंगे? √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, b की जगह क्या है हमारा? √2, तो हम क्या लिखेंगे? √2 का स्क्वायर। और हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? √a का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a के। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? दैट इज 3 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। When we solve the questions rationalizing the denominator, then we will use this property. तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लीजिए, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, ये किसके इक्वल होगा आपका? a माइनस b के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनलाइजेशन। सो व्हाट इज रेशनलाइजेशन? देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सप्रेशन लिखा है 3 प्लस √5 अपॉन √2। So we can perform any operation on irrational numbers like addition, subtraction, multiplication and denomination. But if the denominator in the form of square root, I repeat, if the denominator in the form of square root, so we have to convert denominator from square root.
तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 2, तो मीन्स मुझे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिससे जो डिनोमिनेटर है ये क्या हो जाए, ये स्क्वायर रूट से फ्री हो जाए। यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या मीन्स रूट साइन है, मीन्स मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करके इसमें रूट 2 को रिमूव करना है। तो देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट 2 से न्यूमरेटर को और रूट 2 से डिनोमिनेटर को। अब देखिए क्या होगा, रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 5 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। और इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये हो गया आपका 3 रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5, इसको हम लिख सकते हैं रूट 10 डिवाइडेड में रूट 2 इंटू रूट 2। मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट रूल ऑफ रेशनल नंबर, रूट a इंटू रूट इक्वल टू a, सो वी कैन राइट रूट 2 इंटू रूट 2, सो वी कैन राइट इट इज 2। यही प्रोसेस होती है हमारी रेशनलाइजेशन। बेसिकली रेशनलाइजेशन क्या प्रोसेस है, जिसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमें उसे स्क्वायर रूट से फ्री करना है, और इसको करने के लिए हम जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वही कहलाता है उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था रूट 2 से। तो रूट 2 हमारा क्या हो गया, रूट 2 हमारा हो गया इस क्वेश्चन के लिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल, ये देखिए 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब क्लियर है 2 प्लस रूट 3 में यहाँ पे रूट 3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमें स्क्वायर रूट से फ्री करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर को और 2 माइनस रूट 3 से ही डिनोमिनेटर। क्लियर, देखिए ये क्या था 2 प्लस रूट 3, तो हमने इसके जस्ट अपोजिट साइन कर दिया, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर को और 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को। अब देखिए 2 माइनस रूट 3 1 से 2 करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर बन गया आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो कैन बी राइट 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस 3, और वी कैन राइट 2 माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 1। सो समरी ये है, रेशनलाइजिंग हम इसलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में जो भी हमारी टर्म स्क्वायर रूट की टर्म में है उन्हें हम वहां से रिप्लेस करके किस में कन्वर्ट कर दें, रेशनल नंबर। अब हम देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जब भी क्वेश्चन आपको इसमें से दिया होगा क्लियर, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब देखिए 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर क्या है 3 माइनस रूट 7, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 3 प्लस रूट 7। मैंने बताया था ना कि जो साइन यहाँ पे है उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस रूट 7 से। देखिए अब देखिए 3 प्लस रूट 7 और 3 प्लस रूट 7, इसको मिल सकते हैं 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस रूट 7, 3 प्लस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 एंड 3 प्लस रूट 7। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय, नाउ एक्सपेंड 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर बाय द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9 प्लस रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 प्लस 2ab टर्म, तो 2 इंटू 3 6, ये आपका हो जाएगा 6 रूट 7। अब यहां पर देखिए अगेन a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो गया आइडेंटिटी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 होल स्क्वायर। अब देखिए 9 प्लस 7, ये क्या हो गया हमारा 9 प्लस 7, ये हो गया हमारा 16 प्लस 6 रूट 7 अपॉन, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, तो हम लिख सकते हैं इसको 16
प्लस 6 अंडर रूट 7 अपॉन 9 माइनस 7 2। अब हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8 प्लस 3 रूट 7। अब देखिए ये हमारा किसके इक्वल था, ये हमारा इक्वल था a प्लस बी रूट 7 के। तो क्या हम लिख सकते हैं 8 प्लस 3 रूट 7 इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 7। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा 8 क्या है, यहाँ पर 8 हमारा है रेशनल नंबर, 3 रूट 7 क्या है, 3 रूट 7 है हमारा इरेशनल नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा a क्या है रेशनल नंबर और b रूट 7 क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर। तो हम बोथ साइड क्या करेंगे ना, बोथ साइड इक्वेटिंग रेशनल नंबर विथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे, हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 8 and b equal to 3. Clear? Both side equating the rational number with rational number and irrational number with irrational number. तो यहाँ a equal to क्या हो गया, 8 हो गया, यहाँ रूट 7 था तो ये रूट 7 हो गया। अब b है तो यहाँ पे क्या है 3, तो b की वैल्यू क्या हो गई रूट 3। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें रैशनलाइजिंग प्रोसेस का यूज करना है। हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि रैशनलाइजिंग इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन कन्वर्ट एंड इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।